प्रदेश में रजिस्ट्रियों के मामले में घोर अनियमितताएं सामने आने के बारे में मैं इस महान सदन का ध्यान अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। आज प्रदेश में आए रजिस्ट्रियों के मामले में घोर अनियमितताएं सामने आ रही है। कोरोना महामारी के शुरुआत दौर में भी नियम 7(1) के तहत बिना एनओसी लिए रजिस्ट्रियों में बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। करनाल व गुड़गांव डिवीजन में लगभग 30,774 से अधिक रजिस्ट्रियां गलत तरीके से की गई, जिसमें लगभग 8,182 गलत रजिस्ट्रियां करनाल जिले में भी हुई, जो मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जिला भी है, तथा गुड़गांव जिले में लगभग 21,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां गलत हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी जिलों में भी इस प्रकार के अनेक गलत तरीके से रजिस्ट्रियां होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। सरकार ने इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसे लेकर जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष प्राप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे। तीनों इकट्ठे ले लें। श्री बलराज कुंडू जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, पहले रिप्लाई आ जाने तो फिर पहले रिप्लाई आप बैठिए, दोबारा सप्लीमेंट्री पूछेंगे। भाई वो सप्लीमेंट्री पूछेंगे दूसरे तो। हाँ, आप अपना पढ़ेंगे नहीं, आपने पढ़ दिया, वो मैंने पढ़ दिया। आप रिप्लाई दे रहे हैं, मंत्री जी रिप्लाई देंगे। Sir, the registering authority govern under the works of registration of instruments under section 17 and 18 of Registration Act 1908. After scrutinized document presented to him, the registration is in view of provisions contained under section 21, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 35 ये of the माइक ना registration। कागजों के इधर को कर लो, ये अलग है, ऊपर कागजों के नीचे आ जाता माइक। जवाब तो बहुत अच्छे दे दूंगा, सुन लो। Sir, they are governed under section 21, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 35 of the Registration Act 1908. That is, before acceptance of any instrument of transfer of any property, he has to see whether the proper description of property has been defined in the instrument under section 21, 22 of the said Act. Further, he has to check whether the instrument is presented to him within 4 days of execution of the instruments under section 23, 24 of the Act. Property is situated within his jurisdiction of Tehsil under section 28 of the said Act. Registering authority is bound to compliance with the certain obligations under this Act before registration of any instrument of property of transfer. NOC was made obligatory to prevent massuming of unauthorized colonies under section 7(a) of Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act 1975 and was registered by registering authority for registration of instrument of sale and lease in the notified area by Town and Country Planning Department for the transfer of vacant land under 1 hectare prior to year 2017. In the year 2017, Haryana Act number 11, 2017 was notified on 3rd April 2017. Area was reduced from 1 hectare vacant land to 2 canal agriculture land, that is agriculture land including land recorded as Nehri, Charai, Birani or any other terms in revenue record. The Act is further amended by notification of 14/9/2020, wherein 2 canals of land has been substituted by 1 acre of vacant land. On receipt of the complaints regarding violation of 7(a) of Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act 1975, in June 2020, on conducting preliminary inquiry, certain violation was observed in the same.
3 sub-registrars, 5 joint registrars posted in Gurgaon were charge-sheeted under Rule 7 of Haryana Civil Services, Rules 2016. 6 FIRs were also lodged against 1 sub-registrar, 5 joint registrars under Section 420(10) of the said Act. Consequently, the inquiry report regarding violation of Section 7A of the said Act was sought from all divisional commissioners of the state, letter dated 13/8/2020 by FCR. The inquiry report was received from divisional commissioners of the state. Many sub-registrars, joint registrars of the states registered the instrument of sale and lease of transfer of land without obtaining NOCs from DTP under Section 7A of the Haryana Development and Regulation of the said Act. The notified area under the Act was obligatory by sub-registrar and joint registrar before registration of instrument of sale and lease. The state government has taken serious view regarding the complaints related to registration of instruments of transfer of any property to prevent mushrooming of unauthorized colonies of the state. The new web address for the purpose of registration of instrument and transfer of immovable properties is linked with other departments such as urban local bodies, town and country planning, HSVP, Panchayat and Development Department, Housing Board, etc. The inquiry report from Divisional Commissioner of the State regarding violation of 64,577 deeds, Gurgaon Division 21,716, Karnal Division 9,774, Ambala Division 2,864, Hisar Division 1,016, Rohtak Division 10,849, Faridabad Division 18,358, out of which 8,182 deeds were related to Karnal and 14,873 deeds were related to Gurgaon, whereas violation of 7A of the said Act have been received by the period from 3/4/17 to 13/8/21, for which explanation has been sought from 133 registrars, 97 joint registrars before initiating disciplinary proceedings under Rule 7 of Haryana Civil Services Act within 15 days. Further, all deputy commissioners of the states have been directed to initiate disciplinary proceeding under Rule 7 of Civil Services Group C after obtaining explanation of the matters against registration clerks. It has also been decided disciplinary actions under Rule 7 against the patwaris and registration clerks who failed to scrutinize the documents, who have been instrumental in changing the nature of land, Gair Mumkin in Khasra Girdavari, which facilitated large number of registration violation of 7A. The Haryana Development Regulation Act of Urban Areas 2017. In this regard, Deputy Commissioners of the states have been directed initiating disciplinary inquiry under Rule 7 of Civil Services, Rules 2016 Group C against total of 156 registration clerks, 381 patwaris who have been involved in this regard for changing of nature of land in Khasra Girdavari. स्पीकर सर, मंत्री ने जो जवाब दिया है, सरकार तो स्वयं के बाद स्वीकार करती है कि रजिस्ट्रियों में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। अभी कल का ताजा उदाहरण है, मुख्यमंत्री के अपने करनाल के अंदर तहसीलदार पकड़ा गया, रजिस्ट्री घोटाले में ही उसको पकड़ने का काम किया गया। इसमें जो गड़बड़ी हो रही है वो गड़बड़ी सरकार स्वयं करा रही है, सरकार के संरक्षण में हो रही है। एक बड़ा उदाहरण आपको बताता हूं। जितने भी तहसीलदार लगाए गए, आपके 22 जिले हैं,
और 22 के 22 दिनों में एक एक तहसीलदार को ये काम सौंपा गया है। आपका जो गुड़गांव जिला है सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक तहसीलदार है दर्पण सिंह नाम कंबोज। उस अकेले के पास जो है मानेसर, सोना, पटौदी, फारूक नगर, वजीराबाद, इन तहसीलों का काम भी अतिरिक्त उसको दे रखा है, जबकि गुड़गांव के अंदर तो हर तहसील के अंदर तहसीलदार होना चाहिए। वहां सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां होती हैं। एक ही आदमी को सारी रजिस्ट्री का काम सौंप करके उससे कमीशन के रूप में सीधा सीधा पैसा ऊपर तक जाता है। फिक्स है 5% से 8%। कोई आपके पास सबूत हो तो जरूर दे दें। सबूत भी दे मतलब दूंगा। हाउस के आप अंदर सबूत- वेग ना कोई भी एलिगेशन मैं लगाएं, सबूत भी दे दूंगा। वेग एलिगेशन ना लगाएं, कोई भी आप मेरे सबूत हो को- तो जरूर दे दें। आपने मेरे को पहले भी ये बात कही। हाँ, मैं सुनो। मतलब कहता हूँ कि वेग एलिगेशन के आपने बजाय मैं ना जब आप- इलाहाबाद के इलेक्शन का जिक्र किया तब भी सबूत की बात करी। वो एफिडेविट तैयार हो रहे हैं, वो भी मैं आपको दूंगा। ठीक है। और इसमें भी आपको कितने सबूत चाहिए वो दे दूंगा। आप करोगे क्या फिर उसके बाद? नहीं करेंगे, सरकार को सौंपेंगे, सरकार की ये बता दो मुझे। जिम्मेवारी है। कि आप ये करोगे। मैं आपको बता ही रहा हूं, तो नाम बता रहा हूं कि 22 तहसीलदार ऐसे बैठा रखे हैं जिनको अलग अलग तहसीलें बांट के दे रखी है और उनसे फिक्स है कि उन सब ने 5 से 8% पैसा जो है रजिस्ट्रियों के अंदर, कई जगह तो यहां तक भी है कि गजों के हिसाब से भी पैसे लिए जाते हैं। अभी 1 गज के 300 रुपए, 500 रुपए ये लिए जा रहे हैं। आपके बहादुरगढ़ के अंदर जो तहसीलदार बैठा है वो तो गज के हिसाब से पैसे लेता है। नाम बता देता हूं मैं आपको तहसीलदारों के जिनके पास अतिरिक्त कार्यभार है। हाँ, इनकी संजय तहसीलदार है जिसके पास पुंडरी है, पेवा है, 2 अतिरिक्त उसके पास है। अंबाड़ा कैंट में जो है उसके बाद शाहबाद का दे रखा है। तहसीलदार रादौर के पास लाडवा तहसील का है। राजबख्श तहसीलदार है करनाल में जिसके पास नीलोखेड़ी और इंद्री है। अब देख लो, सारे बता रहे हैं। इनको आप सबको टाइम तो दे देते, सारे बता देंगे कहां कहां कितना कितना पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि ये सब एक एक तहसील से आते हैं। इनका रोज वास्ता है तहसीलदारों से। इसी तरीके से लुहारू का जो है उसके पास शिवानी का अतिरिक्त है। बालडा वाला उसके पास चरखी दादरी का है। अच्छा, बादली का जो उसके पास बहादुरगढ़ का अतिरिक्त है। झज्जर वाला उसके पास बेरी का है। गनौर वाला जो उसके पास घुआना का है। सोनीपत वाला उसके पास खरगोदा का है। दर्पण सिंह के पास तो 5-6 बताए मैंने आपको, अकेले गुड़गांव का जो है। इसी तरीके से नारनौल वाले के पास महेंद्रगढ़ का है। रिवाड़ी वाले के पास बावड़ का है। बड़खल वाले के पास फरीदाबाद बल्लभगढ़ का है। कोई सप्लीमेंट्री क्या है आपकी इसके ऊपर? मैं यही पूछ रहा हूं, यही बता रहा हूं कि जब इस तरह से तहसीलदारों को एक एक जिले के अंदर अलग अलग सब डिवीजन दे रखे होंगे तो वहां पे वो तहसीलदार जो है 100% गड़बड़ करेगा। क्यों दे रखे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्या बाकी तहसीलदार नहीं है? जो सब डिवीजन बने हुए उनमें तहसीलदार नहीं लगा रखे, उनको काम क्यों नहीं दे रखा? इसी तरीके से जो अब तक जो है 2017 से 21 के बीच आपके 6 मंडल ऐसे हैं, करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, अंबाड़ा, इनमें 65,000 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पाई गई है। और साल में लगभग 6 लाख रजिस्ट्रियां हरियाणा प्रदेश के अंदर होती है। इसमें पिछले दिनों एक जांच कराई गई थी और जांच भी उस वक्त के जो आपके इस डिपार्टमेंट के एसीएस जो से कौशल साहब, उन्होंने जांच करी थी। उसमें 300 लोगों के विरुद्ध जांच में जिनके नाम पाए गए थे उनमें 150 के करीब नायब तहसीलदार और तहसीलदार शामिल हैं। अब तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है सरकार ने? उनको क्या सजा दी है? क्या उनसे वसूल किया है? इसी तरीके से कोरोना की महामारी के दौरान जो है 7A के तहत बिना एनओसी लिए भी रजिस्ट्रियां बड़ी पैमाने पर की गई थी। ये मामला मैंने पहले भी उठाया था। उस वक्त पे मुख्यमंत्री की तरफ से आया था कि हम इसकी जांच कराएंगे। अब तक उसमें क्या हुआ इसके बारे में बताएं। गुड़गांव में अकेले में 21,000 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पाई गई है, सरकार ने सब माना है। 10,000 रजिस्ट्रियों में करनाल में गड़बड़ी पाई गई है, ये भी मानी गई है। तो फिर इनमें जो रजिस्ट्रियों में गड़बड़ हुई है, इनमें किया क्या है सरकार ने? अब तक किस किस को सजा दी है, किसके खिलाफ कार्रवाई करी है? जो रिपोर्ट आपके एसीएस की आई हुई थी उसके ऊपर सरकार ने क्या संज्ञान लिया? जो नाम है तहसीलदारों के जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे,
उन सब के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? रजिस्ट्री घोटाले में जो है तहसीलदार रजिस्ट्री करें, मैं तो 1 सेकंड लूंगा सर, ज्यादा नहीं लूंगा सर। एक जबकि गवर्नमेंट में क्या है कि 1,99,000 तक पैसे आप भर देते हैं, जो दे सकते हो कैश। हमारे मेवात में 5 तहसीलों में करोड़ों करोड़ की रजिस्ट्री हुई है सर, आज तक व्हाइट मनी नहीं है। बहुत बड़ा घोटाला जी, चेक करके देखो सर। प्रदेश में 4 साल के तहत 64,000 की जो गड़बड़ी मैंने आपको बताई है, उसमें अलग अलग ब्यौरा भी बता देता हूँ कहां कहां क्या कितनी गड़बड़ी है। गुड़गांव में 21,000 है, फरीदाबाद में 22,000 है, करनाल में 10,000 है, हिसार में 1,000 है, रोहतक में 2,600 है, अंबाला में भी 2,600 है। इसी तरह गड़बड़ी करने वाले अधिकारी जो कर्मचारी है उनका ब्यौरा भी बता देता हूँ आपको। नहीं, वो तो आपके रेवेन्यू अधिकारी जो इसमें 5 शामिल सरकार ने माना है, खुद उनके खिलाफ कार्रवाई बता रहा हूं कि जो रेवेन्यू अधिकारी है वो 5 है, क्लर्क जो रजिस्ट्री क्लर्क है वो 87 है, सब रजिस्ट्रार और ज्वाइंट रजिस्ट्रार जो है वो 34 है, तहसीलदार जो है इसमें 130 शामिल है, नायब तहसीलदार जो है इसके अंदर 94, पटवारी जो 176 है। इन सब लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई? नहीं की गई तो उसके कारण क्या है ये भी बता दो। ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा मामला है। 6 लाख रजिस्ट्री सालाना यहाँ पे होती है। एक रजिस्ट्री में अगर कोई लाख रुपया भी रजिस्ट्री में खा रहा है, लाख से ज्यादा खा रहे, मैं तो एवरेज बता रहा हूँ, तो भी कितना पैसा बनता है। ये सब पैसा जा कहाँ रहा है, कौन खा रहा है इसको? मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा कि इस सारे मामले की जांच कराओ। इस सारे मामले की जब जांच करोगे तब पता लगेगा कि आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है। आपको अंदाजा तो लगेगा इस बात का। या तो दोनों अफसर में लगे हुए प्रदेश को और आप भी मस्त हो रहे हैं। एक मिनट जी, जहाँ माननीय सदस्य ने अपनी सप्लीमेंट्री में बात रखी, डाटा गवर्नमेंट ने अपने विवरण में भी पूरी तौर पर दिया है और एक एक तहसील का अगर ये पूछना चाहते हैं तो उसका ब्यौरा भी मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा कि कहाँ कहाँ वॉयलेशन हुई। पहली चीज स्टैंप चोरी हुई, 1 रुपए की भी नहीं। दूसरी चीज वॉयलेशन क्या है कि क्या उसने 7A की परमिशन ली नहीं ली। जहां जहां डिविजनल कमिश्नर्स को पूरे हरियाणा प्रदेश की इंक्वायरी हुई, ना कि विपक्ष ने या किसी और व्यक्ति ने या किसी विसल ब्लोअर ने लाके डाटा दिया, हमारी सरकार ने स्वयं एक लूप होल जो था उसको पकड़ा, उसकी इन्वेस्टिगेशन गुड़गांव से शुरू करी और गुड़गांव में तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर रेवेन्यू क्लर्क हो या पटवारी, उन सब के खिलाफ एक्शन इनिशिएट किया और उसका विवरण इस सदन में 2 बार पहले भी इन डिटेल दिया गया। उस इंक्वायरी को हमने 2020 के अंदर पूरे प्रदेश भर के अंदर 17 से लेके और 20 तक का जितना भी डाटा था उसको कलेक्ट करने के लिए दिया और हर डिविजनल कमिश्नर ने अपना डाटा कलेक्ट करके कि बिना 7A की एनओसी कि कितनी रजिस्ट्रियां हुई है वो डाटा विवरण सरकार को दिया गया। उसके अंदर बहुत सी ऐसी लैंड है जो एग्रीकल्चर है, उस समय के हिसाब से जो लैंड का 2 कनाल एरिया होता था उसके अंदर परमिटेड थी। डिप्टी कमिश्नर्स को 15 दिन का समय दिया गया है कि तमाम तहसीलदारों को उन डिटेल्स के साथ उनसे शो कॉज नोटिस के साथ जवाब मांगा जाए। जहां जहां गड़बड़ी पाई गई है उसके खिलाफ रूल 7 जो हरियाणा सिविल सर्विसेज के हैं उसके तहत कार्रवाई करें। आपने स्वयं देखा कि किस प्रकार से पिछले दिनों पटवारी साथी भी धरने पर बैठे और कारण यही था कि उनको भी शो कॉज नोटिस दिए गए कि अगर किसी प्लॉट के अंदर सड़क निकल गई, पहले वो एग्रीकल्चर थी अब गैर मुमकिन दिखा दी गई और उसके अंदर फिर रजिस्ट्रेशन हुई और वो अगर लैंड यूज 1 साल के अंदर अंदर 2 बार बदला तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम निश्चित तौर पर करेंगे। और डे 1 से 2017 की 3 अप्रैल से जब से ये प्रोसेस में चेंज हो गई, ये डीड रजिस्ट्रेशन हुई है, जितनी डीड्स कोई सरकार ने आंकड़े नहीं छुपाए, एक एक तथ्य सरकार ने पटल पर भी रखा है और एक्शन लिया तो डिप्टी कमिश्नर्स के लेवल से आगे भी देने का काम है। जहां माननीय सदस्य ने तहसीलदारों की बात करी, किसी के पास कुंडरी का चार्ज है, उसके साथ वाली तहसील का चार्ज है। आज प्रदेश के अंदर तहसीलदारों की कमी है। 18 नए रिक्रूट आए हैं, उनको भी हमने तुरंत में फील्ड में भेजने का काम किया है। गुड़गांव में कमी इसलिए है कि गुड़गांव के 3 सब रजिस्ट्रार, 5 ज्वाइंट रजिस्ट्रार्स को हमने सस्पेंड किया
और सस्पेंशन के बाद जब वो अपने 6 महीने के पीरियड के बाद रीइंस्टेट हुए तो उनकी फाइल पर लिखा गया कि वो कभी भी एनसीआर के जो ये 4 जिले दिल्ली के सराउंडेड हैं जहां बड़ी तौर पर मशरूमिंग हो रही है उन जिलों में पोस्ट नहीं हो सकते। नए रिक्रूटेड जो तहसीलदार थे उनमें जल्द उन तहसीलों में नियुक्ति कर दी जाएगी और जो एडिशनल चार्जेस हैं अगर मान्य सदस्य को किसी 1, 2, 3 व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि वो ज्यादा एडिशनल चार्ज लिए बैठे तो